Okay, shall we start? Please introduce yourself. My name is Parul. I stay in Lakshmi Nagar, Mandavli. Basically, I belong from Uttar Pradesh, Ayodhya. If I'm talking about my qualification, I completed my 10th in 2013 and 12th in 2015 from CBSE board. Then I completed my graduation degree in 2018 from DU and then post-graduation in 2020 from IGNOU. If I'm talking about my additional qualification, I completed my tally accounting and retailing course as well as DLED in last year. And I have 4-year experience as an executive assistant in Herman's Travel. And if I'm talking about my skills and everything, I learned many things and new techniques, and I like to work in a group management, and as well as I used to give my ideas in a work. And my aim is to achieve any goal with new ideas, creative ideas, thinkings, and etc. And my hobbies is to traveling, adventure, solo trips, and listening music as well as that's it. Till now, where you have traveled solo? Solo trips, Oli, Nainital, and Dehradun, and Kerala, as well as last year in Rajasthan. Uh, there was any purpose for that trip? No, Only just for leisure. fun. Okay, solo. Yeah. Okay. If I will ask you, define yourself in one line, then how you will define yourself? Understood the question? Yeah. Hmm. I'm like a liquid. I can adjust in any shape, in any environment. Okay. Tell me about your last job. Last year I used to work in Herman's Construction, where I do as a work an executive assistant, where my role was like to attend any calls and like daily management works, like maintain the registers and clients queries, mailings, drafting, banking, as well as I used to work here as an accountant. So I used to work as GST, I used to work in Tele GST, as well as I go to in meetings to attend with behalf of sir and with him, and sometime I go out of India to attend all the meetings purpose. And here there I like to work as a behalf of him, like her लेफ्ट हैंड कि अगर वो नहीं होते ऑफिस में तो पूरा ऑफिस मैं संभालती थी, पूरा ऑफिस मेरे अंडर आता था. So why you have left the job? Because last year in 2021, previous year in November, my grandfather was passed out, so I have to quit the job because I have to go Uttar Pradesh from my hometown. तो दोबारा क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? बिकॉज यहाँ पे मैं स्टिल एक लेवल पे आके रुक गई थी, आगे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो मैं सोचा क्वाइट कर लेते हैं. So what is your life goal? माई लाइफ गोल इज डिफरेंट कि कुछ भी मतलब कोई भी गोल होगा मैं उसे अचीव करना चाहूँगी. आई यूज टू वर्क एज अ मल्टीटास्कर. तो गोल कोई दूसरा आपको दे देगा नहीं ना, आपको तो खुद अपना लाइफ गोल बनाना पड़ेगा. तो आपने अपना लाइफ के लिए क्या गोल बना रखा है? आज से 4-5 साल के बाद में अपने आप को कहाँ देखती हैं इन योर करियर? As a post of HR या other as a professor, because now I'm preparing for PhD. So they two are my goals. So इसमें से कोई भी perfect मेरे लिए हो जाएगा. Okay. What are your 3 best qualities which you find different from others? Okay. मैं अपनी टीम के साथ बहुत फ्रेंकली वर्क करती हूँ. उन पे कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती, या कोई वर्क प्रेशर नहीं देती, या एज अ फ्रेंड उनके साथ करती. बिकॉज अगर हम प्रेशर दिखाएंगे तो वो डर के मारे डर से काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत भी हो जाएगा. सेकेंड थिंग कि कोई भी चैलेंज होगा, भले मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, बट उससे कुछ ना कुछ सीखूंगी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर मैं इस जॉब से भी रिजेक्ट होंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मैंने कुछ सीखा यहाँ से. 3 qualities. 3 qualities. Not explanation. Yeah. Just 3 qualities. And last one is management. Okay. And the which quality you want to improve in yourself in coming future? In group work. तो पहले आपने बोला कि आप टीम वर्क अच्छा करती हैं, फिर दूसरा आप बट ग्रुप वीकनेस. वर्क में वीकनेस इसलिए आ जाती है बिकॉज कहीं ना कहीं जब मुझे वर्क प्रेशर मिलता है तो मैं अपनी
टीम पे थोड़ा सा मतलब शाउट कर देती हूँ या वो चीज़ नहीं हो पाती जिस तरह मैं चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ उसको उस स्किल को मैं अपनी और अच्छे से इम्प्रूव करूँ। लास्ट जॉब के बारे में कुछ अच्छी बात बताइए। लास्ट अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब लाइक मैं मैनेज करती थी हर एक थिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यस मेरे अंदर एक मैनेजमेंट की स्किल अच्छी हो रही है। सेकंड इज़ कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाने के मिलते थे ऑफर्स, तो मैं वो भी जाती थी बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। एंड थर्ड वन इज़ कि फर्स्ट जब मैं गई थी तो वहाँ पे एज अ ऑफिस असिस्टेंट थी, बट आफ्टर 1.5 ईयर मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन गई। एंड आई यूज़ टू मतलब वहाँ पे मैं जो हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी या मीटिंग्स होती थी उन्हें मैं ऑर्गेनाइज करती थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। पीपीटी वगैरह बनाती थी? हाँ जी। एक्सेल वगैरह में काम कर लेती हैं? हाँ जी। ठीक है। अभी आप कौन सी कंपनी में अप्लाई करने आई हैं? इट्स अ ट्रेड वेव। क्या है ये? इसमें मैंने पढ़ा था ये इट्स आई थिंक इट्स अ शेयर रिलेटेड टू शेयर मार्केट एंड फाइनेंस। इसमें लोगों को शेयर्स और बॉन्ड्स को दिया जाता है, जो मैंने इसमें पढ़ा था जितना मुझे दिया गई थी इसमें उसमें यही था कि शेयर से रिलेटेड है और ज़रूरी नहीं है कि जिसकी फाइनेंस अच्छी हो वही इस ट्रेड में आए, वही इसी फील्ड में आए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। जो नॉर्मल हम जैसे मीडियम क्लास के भी होते हैं वो भी इसमें अपना ट्रेड मतलब इस फील्ड में हम भी बॉन्ड्स या शेयर्स को ले सकते हैं। यही आपने उसमें मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ जी, इसमें इतना ही शो हो रहा था मुझे एंड मैंने इतना ही कर पाया। ठीक है। ओके। पारुल का मतलब क्या होता है? पारुल इज अ नेम ऑफ अ फ्लावर विच फाइंड इन बे ऑफ बंगाल की जो है उसमें बहुत डीपली जाके ये फूल वहाँ पे पाया जाता है। कहते हैं कि जो पहले के टाइम में एक राजा थे, उनके 5 बेटे थे और एक बेटी थी, और उनके राजा को एक मतलब एक वरदान दिया गया था कि जब भी आपके घर में किसी की डेथ होगी तो वो एक फूल के रूप में जाएंगी। तो जब उनकी बेटी की डेथ हुई तो वो फूल बनी और एक बार बहुत तूफान आया तो वो फूल उड़ के मतलब बे ऑफ बंगाल में बहुत डीपली अंदर चला गया। तो पारुल इज़ अ नेम ऑफ फ्लावर। ओके। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने यहाँ DLD लिखा हुआ है। DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, तो फिर ये तो टीचिंग फील्ड हो गया एक तरह से। हाँ जी। ये बिल्कुल अलग नहीं हो गया? यहाँ डिफरेंट हो गया। स्कूल्स वगैरह के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ जी, स्कूल्स वगैरह बिकॉज मेरी ट्रेनिंग भी चली थी इन गवर्नमेंट स्कूल, तो आई हैव मोस्ट स्कूल मैनेजमेंट को लेकर कुछ जानती स्कूल हैं? मैनेजमेंट यस। जिस स्कूल में हम गए थे वहाँ पे हमें मैनेजमेंट भी मिली थी। लाइक कोई अगर प्रोग्राम होता है तो कैसे उसे कैसे ऑर्गेनाइज टू लेके कैसे कंट्रोल करना है और उसको कैसे कंक्लूड करना है इन द एंड जैसे जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनकी डिटेल्स बनाना, उनकी किस मतलब उनकी हर एक चीज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, एंड बच्चों को क्या चीज़ चाहिए या वहाँ पे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हम लोगों ने मतलब मैंने किया हुआ है। ओके। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब आप अपने आप को HR फील्ड में ले जाना चाह रही हैं हाँ जी। फ्यूचर में, क्यों ऐसा? आई लाइक ये मेरे अंदर आया व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। दैट मेरा सब्जेक्ट था HR, जब मैं बहुत उससे इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी, तो बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं HR का कोर्स नहीं कर पाई। मैं अपनी स्टडी में ही कंटिन्यू रही और एज वेल एज जॉब में, बट आई लाइक कि अगर मैं HR बनूँ तो HR के प्रोफाइल में होता क्या है? वही लाइक ऑर्गेनाइज एनीथिंग, उसको प्लान करना एंड स्टाफ को कंट्रोल करना, स्टाफ में क्या दिक्कत हो रही है उन सबको देखना, और टू द डायरेक्ट टू मैनेजर से बात करना और रिक्वायरमेंट में वैकेंसीज का ऑर्गेनाइज करना, उनका इंटरव्यू लेना, शेड्यूल करना एंड प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन टू एवरी स्टाफ। ओके। पारुल, अगर आपको मान लो ये जॉब मिलता है तो वैसे केस में आप क्या सैलरी सोच रही हैं कि मिल जाए तो आपको फिलहाल एक सर्वाइवल वाली बात, बिकॉज अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आप सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वैसे सिचुएशन क्या सोच रही है कि अगर आपको एक सैलरी ऑफर हो तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए? सर बेसिकली और ट्रूली ऑनेस्टली से मेरी सैलरी 25,000 थी लास्ट जॉब में, बट हाँ टाइम ही ऐसा पैंडेमिक टाइम है, कुछ कह भी नहीं सकते कब लॉकडाउन लग जाए। तो अगर मुझे 22-23 भी मिल जाएगी तो दैट्स ओके, या 20 भी मिल जाएगी तो यस मेरी ठीक है इतना। तो लेट अस डिसाइड एंड वी विल इन्फॉर्म यू बाय द वीकेंड। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।